Very good morning, kids. Welcome to SRV Academy. I, Aparna Verma, going to teach you today subject science of class 6th. This is our third chapter, and third chapter is based on fiber to fabric. So in this chapter today I am going to teach you spinning cotton yarn, means how to make cotton through yarn through the spinning, and yarn to fabric, and how to make the fabric through the yarn. So there are two processes, one is weaving and the another one is knitting. Two processes are there for making the fabric through the yarn, and at last I will also tell you about the history of clothing material. So these things I will discuss with you today. So here in this chapter fiber to fabric, I have already explained you in our earlier video that what you understand by the fiber and how we convert the fiber into fabric. So we have already discussed in our earlier video that variety in fabrics. So what are the so many varieties of the fabrics present in market, that we have already discussed. And also, what do you understand by the fiber? Actually, there are two types of the fibers: natural fibers and the synthetic fibers. So natural fibers generally we get through the animals and the plants. I have told you this in our earlier video. So from the plants we just get cotton and jute, and from the animals we just get silk and wool. And nowadays through the chemical process we just using some chemicals and also prepare a synthetic wool in laboratory. So लेबोरेटरीज़ में हम क्या है सिंथेटिक वूल्स भी बना रहे हैं. सो एक्चुअली आई जस्ट वांट टू टेल यू कि फाइबर्स क्या होते हैं, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेचुरल फाइबर्स एंड द सिंथेटिक फाइबर्स. सो दिस all the things I have discussed with you in our earlier video. Some plants of fibers I have told you, means plants जो हमें फाइबर्स मिलते हैं, that is cotton एंड जूट. क्या क्या मिलता है हमें? कॉटन मिलता है, जूट. तो आई टोल्ड यू कि कॉटन कैसे होते हैं. कॉटन लाइक अ लेमन की तरह वाइट बॉल्स की तरह से दिखते हैं, और जहाँ ये कॉटन के प्लांट्स लगे होते हैं वो ऐसे लगता है जैसे कि पूरे में बर्फ़ छाई हुई हो, जैसे बर्फ़ ही बर्फ़ है ना. और इन बॉल्स को जब इनके पेड़ से अलग किया जाता है, कब? जब ये बर्स्ट हो जाते हैं, ये बॉल्स फट जाते हैं, वाइट कलर की कॉटन इनसे बाहर निकलने लगती है, तब हम इन कॉटन बॉल्स को इनके ट्री से सेपरेट करते हैं, और इस कॉटन को उस बॉल से सेपरेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ गिनिंग. जो कि इसमें क्या किया जाता है, गिनिंग प्रोसेस में एक कॉम्ब का यूज़ किया जाता है, और उस कॉम्ब के थ्रू हम इस कॉटन को उसके प्लांट से सेपरेट कर लेते हैं. लाइक द सेम जूट में हम क्या करते हैं, जो जूट का पौधा होता है, तो जैसे ही उसमें फ्लावरिंग होने लगती है, जैसे ही फसल पकने लगती है, हार्वेस्टिंग होने लगता है फसल का पकना, तो जो प्लांट होते हैं उनमें फ्लावर आने लगते हैं. तो फिर इनको क्या करते हैं, इनके स्टेम को पानी में डुबा कर के, मतलब जो जूट के प्लांट्स होते हैं जनरली वहाँ पर एक ऐसा एरिया बनाया जाता है कि एक पॉन्ड जैसा एरिया कवर किया जाता है कि जूट के प्लांट्स को उसमें हाफ डुबा दिए जाते हैं जैसे ही उनमें फ्लावरिंग होने लगती है, और फिर इनके स्टेम से जूट निकाल कर के यूज़ किया जाता है. सो दीज all the things I have discussed with you in our earlier video. So you can read your earlier chapter, your earlier video, and then you can find these everything in detail over there. Now today I'm going to discuss with you our another topic, and that is spinning cotton yarn. Spinning means होता है the process of making yarn from fiber, यानी कि ऊन बनाने की प्रोसेस फाइबर से, इसको हम स्पिनिंग कहते हैं. तो अब हम कैसे स्पिनिंग का काम करते हैं, दैट आई विल डिस्कस विद यू इन द एक्टिविटी नंबर 4. सो लुक हियर. होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड. अपने हैंड में थोड़ी सी कॉटन को लीजिए, ठीक है. पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ अदर हैंड. नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग out the cotton while continuously twisting the fibers. Are you able to make a yarn? मीन्स हमें क्या करना, जनरली हम ये काम घर में करते हैं. आप जब क्या करेंगे, कॉटन को या एक वूल को
ठीक है ना। वूल को जो ऊन होती है या फिर कॉटन मीन्स रुई होती है। घर में आपने देखा होगा दिए के लिए हम बत्ती बनाते हैं तो अपने दोनों हथेलियों के बीच कॉटन को रख करके उसको रगड़ते हैं और पतली पतली बत्ती बनाते हैं। या फिर हमारे घर में हमारी मम्मी दादी लोग ऊन जो ऊन होती हैं उसका या मीन्स कॉटन का एक सिरा थंब से और अपने हमारी 4 फिंगर से पकड़ के खींचती जाती हैं और उसको पतला करती जाती हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है हमारी कॉटन या वूल? दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ यॉन। यॉन मीन्स होता है धागा, फाइबर से यानी रेशे से धागा बनना, स्ट्रैंड्स बनना जो प्रोसेस होती है वो हमारी स्पिनिंग प्रोसेस और यॉन का बनना होता है, यानी धागे का बनना होता है। तो इस एक्टिविटी में यही इन्होंने बताया कि हम वूल को क्या करेंगे या कॉटन को अपने दोनों हैंड के बीच में रखेंगे और अपने थंब और 4 फिंगर से हम उसको खींचना स्टार्ट करेंगे, पुलिंग करेंगे उसको। तो वो कंटिन्यूसली ट्विस्ट करते उसको खींचेंगे तो वो जो फाइबर होगा वो यॉन में चेंज हो जाएगा। यू जस्ट कैन डू एट योर होम दिस थिंग्स ऑल्सो। आप कॉटन लीजिए, रुई लीजिए, रुई से पतला पतला अंगूठे और उंगली की सहायता से आप खींच करके बनाइए उसको ट्विस्ट करते हुए, तो देखना ऊन या धागा बनता जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यॉन फ्रॉम फाइबर इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। तो इसी प्रोसेस को, यॉन बनाने की ये प्रोसेस फाइबर के थ्रू इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यॉन, यानी कि ऊन बनाने की प्रोसेस, फाइबर के द्वारा ऊन बनाने की प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted। इस प्रोसेस के द्वारा हम बहुत सारे अमाउंट में, बहुत सारी मात्रा में कॉटन से को ट्विस्ट कर करके हम फाइबर को, कॉटन को ट्विस्ट कर करके यॉन बना सकते हैं। दिस ब्रिंग द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म यॉन। ठीक ना, वही बताना चाह रहे हैं कि इस प्रोसेस के द्वारा हम फाइबर्स के और कॉटन के द्वारा उनको ट्विस्ट कर करके एक लार्ज अमाउंट में यॉन बना सकते हैं। A simple device used for spinning is a hand spindle, also called तकली। जो एक सिंपल डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल हाथ के द्वारा करके किया जाता है, मीन्स हाथ से ऊन बनाने की जो प्रोसेस होती है, जो उसमें जो हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको हम तकली कहते हैं। आप देख रहे हैं, यू कैन सी दिस इज़ द तकली। ठीक है ना, ये तकली होती है जो हाथ से इस्तेमाल की जाती है और इसके द्वारा ऊन बनाई जा सकती है। आई कैन शो यू हियर, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, लुक यार इन दिस पिक्चर, ये तकली होती है। ओके, दिस इज़ कॉल्ड तकली, जो कि हैंड से इस्तेमाल की जाती है और इसके एक सिरे पे धागा लपेट करके गोल गोल घुमाते हुए जो कॉटन होती है उससे पतला 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 धागा बनता जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस जो होती है जो हैंड से यूज़ करके बनाई जाती है, हैंड डिवाइस से, और उसको हम तकली कहते हैं, यानी तकली का यूज़ करके हैंड से बनाई जाती है। एंड अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इस चरखा। और जो दूसरी प्रोसेस होती है हैंड डिवाइस जो यूज़ की जाती है हाथ से ऊन बनाने के लिए, किसका यूज़ करते हैं हम? चरखा। और चरखा आपने सुना होगा गांधी जी के टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं। यूज़ ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। यस, चरखा का यूज़ हम कब से कर रहे हैं? महात्मा गांधी के टाइम से चरखा यूज़ है, जबकि हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो उस टाइम से हम इस चरखे का यूज़ करते चले आ रहे हैं। ओके, ही एनकरेज पीपल टू वियर। तो महात्मा गांधी ने हमेशा क्या किया? उन्होंने लोगों को एनकरेज किया। क्यों? किस बात के लिए? क्लॉथ्स मेड ऑफ होम स्पन यॉन टर्म्ड एज खादी। उन्होंने हमेशा लोगों को एनकरेज किया कि आप जो भी कपड़े पहने वो होम स्पन माने हमारे खुद के देश में बने हुए ऊन के द्वारा बने हुए हमारे खुद के देश की ऊन से बने हुए कपड़े, जिसको उन्होंने खादी नाम दिया था, यानी खादी के बने हुए कपड़ों को ही लोगों को पहनना चाहिए। वो हमेशा किसको प्रमोट करते रहे कि लोगों को हमारे खुद के हाथ के बने हुए कपड़े, हमारे देश में निर्मित कपड़े, जिसको उन्होंने खादी नाम दिया, उसका ही यूज़ करना चाहिए। एंड शन मीन्स होता है बहिष्कार। बहिष्कार करना चाहिए किसका? इम्पोर्टेड क्लॉथ्स मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। जो बाहर विदेशों से बने हुए, बाहर की मिल्स में बने हुए इम्पोर्टेड कपड़े होते हैं, उनका शन मीन्स बहिष्कार करना चाहिए। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी। खादी को पॉपुलर और करने के लिए और उसका बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन इन 1956। तो हमारी खादी को प्रमोट करने के लिए भारत के संविधान ने भी एक बॉडी लिखी, एक मतलब
एक बॉडी बनाया, एक कहना चाहिए एक संविधान लागू किया कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन इन 1956, जिसका नाम खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन के नाम से जाना गया इन 1956। यानी खादी को प्रमोट करने के लिए संविधान में एक स्पेशल पार्ट बनाया गया जिसको हम खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन के नाम से जानते हैं। ये 1956 में बनाया गया और लोगों को प्रमोट किया गया कि आपको खादी ही पहनना है और इम्पोर्टेड क्लोथ्स का बहिष्कार करना है। Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machine। जो spinning yarn यानी ऊन का निर्माण एक बृहद पैमाने पर, एक लार्ज स्केल मीन्स बड़े रूप में, बहुत बड़े रूप में ऊन का उत्पादन कैसे होता है? मशीनों के द्वारा होता है। आफ्टर स्पिनिंग yarns are ready for making fur। और स्पिनिंग के बाद जो यॉन तैयार की जाती है उसके द्वारा फिर कपड़े बनाए जाते हैं। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्पिनिंग यॉन? स्पिनिंग ऑफ यॉन मीन्स देयर आर सम प्रोसेस इन विच वी जस्ट मेक यॉन थ्रू द कॉटन। सो क्या करते हैं हम? वी जस्ट मेक अ यॉन थ्रू द कॉटन और वूल। और इन दिस प्रोसेस बाय हैंड वी यूज तकली एंड चरखा and after that we are also using some machines for spinning of yarn। तो पहले हम क्या यूज़ करते थे? तकली और चरखा का यूज़ करते थे फॉर मेकिंग द yarn थ्रू द कॉटन और वूल। और नाउ डेज सो मैनी मशीन्स आर यूजिंग फॉर मेकिंग इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ yarn। ठीक है ना, लार्ज अमाउंट yarn बनाने के लिए आज हमारे देश में बहुत सारी मशीन्स का यूज़ हो रहा है। एंड व्हेन वी प्रिपेयर दिस yarn, थ्रू दिस yarn वी आर मेकिंग फैब्रिक। जब ये yarn तैयार हो जाती है, ऊन तैयार हो जाता है, स्ट्रेन तैयार हो जाता है, तो फिर हम उसके थ्रू क्या बनाते हैं? फिर हम उसके थ्रू कपड़े बनाते हैं। सो नेक्स्ट, दिस इज़ तकली। आई हैव टोल्ड यू तकली ऐसी होती है। और चरखा मैंने आपको दिखाया। चरखा, लुक हियर, दिस इज़ चरखा। गांधी जी का चरखा एवरीबडी हैज़ सीन, है ना, सभी ने देखा है। दिस इज चरखा। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज yarn टू फैब्रिक। अभी हमने देखा स्पिनिंग ऑफ yarn यानी ऊन का तैयार होना, ऊन कैसे बनती है। बट नाउ आई विल टेल यू हेयर yarn टू फैब्रिक। अब इस yarn से यानी कि इस ऊन से फैब्रिक, कपड़ा कैसे बनता है। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarns। यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीक़ों का यूज़ करके हम फैब्रिक्स बना सकते हैं ऊन से। द टू मेन प्रोसेसिंग आर weaving and knitting, but the two important process are weaving and knitting, and I have already discussed with you the difference between the weaving and knitting। मैंने आपको weaving और knitting का difference already I have told you in an earlier video, but again I am telling you here। Okay, so weaving, first we will watch here weaving in activity 2। you might, yes, last हमने activity 2 में actually weaving discuss, we have already discussed about the weaving। so you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together। The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving। Let us try to weave some paper strips। तो क्या होता है वीबिंग? वीबिंग आई हैव टोल्ड यू कि इसमें क्या होता है, टू सेट्स ऑफ थ्रेड, धागे के टू सेट्स लिए जाते हैं, दो धागे लिए जाते हैं। वन वी जस्ट पुट इन अ हॉरिजेंटल वे एंड अनदर इज वी विल पुट इन अ वर्टिकल वे। देन वी डू this process, okay, then we make the fabric through the yarn। इसमें टू हम थ्रेड्स लेंगे या टू स्ट्रैंड्स ऑफ yarn we will take। एक को हम हॉरिजेंटल शेप में रखेंगे। हॉरिजेंटल मीन वन we just keep like this, another we keep like this। this is called horizontal and vertical। ठीक है ना, ये लुक हियर, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। हॉरिजेंटल और वर्टिकल में एक ऐसे और एक ऐसे, इस तरीके से रख के दो थ्रेड्स को हम वीविंग का काम करते हैं। और थ्रू दिस वीविंग वी जस्ट मेक द फैब्रिक्स। तो जो हमारे पैंट्स होते हैं, साड़ीज़ होती हैं, शर्ट्स, वी जस्ट यूज़ दिस प्रोसेस। वी आर यूजिंग weaving process in for making the fabric like sarees, pants and shirts। in most of the cloth we are using weaving process, because in this process we just keep two threads, and one in horizontal position and another one is a vertical position, and then we make the fabric। okay, so this is a weaving process। look here, this is a weaving with paper strips। ठीक है, एक को हॉरिजॉन्टल एक को वर्टिकल रख के ये weaving का कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज निटिंग प्रोसेस।
So knitting, have you noticed how sweaters are knitted? In knitting a single yarn. आपने कभी नोटिस किया है कि घर में हमारी मम्मी दादी, हमारे जो घर के ओल्ड लेडीज़ होते हैं, वो कैसे एक ऊन से सारा स्वेटर बुन देते हैं? Have you noticed? That process actually called a knitting. Used to make a piece of fabric. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? What happens? Actually, knitting process, that process only one kind of yarn we are using and make complete fabric. यानी जो स्वेटर होता है वो एक ही ऊन से, एक तरीके की ऊन से, मीन्स एक तरीके से उसका यूज़ करके हम पूरा फैब्रिक, एक स्वेटर तैयार कर लेते हैं. अगर हम निटिंग प्रोसेस से बने हुए किसी मोजे को या किसी क्लॉथ को एक जगह से खींचना स्टार्ट करते हैं तो आपने कभी फील किया क्या होगा? वो पूरा वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट पूरा स्वेटर या पूरी ड्रेस खुल जाएगी, जो कि निटिंग प्रोसेस से बनी होगी, बिकॉज वो एक धागे से मिलकर के बनी होती है. सो दिस इज़ द निटिंग प्रोसेस. What happens? A single yarn get pulls out continuously as the fabric gets unraveled. वही हो गया. अगर हम एक धागे को खींचते जाएंगे तो फाइनली क्या होगा? वो पूरा कपड़ा खुल जाएगा. Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. ये है सॉक्स और बहुत सारी चीज़ें हैं. ग्लव्स होते हैं, सॉक्स होते हैं, स्वेटर्स होते हैं, मेन कैप्स होते हैं. बहुत सारी चीज़ें घर में निटिंग प्रोसेस से बनाई जाती हैं, है ना. Knitting is done by the hand and also on machine. Yes, knitting process को हम हाथ से भी कर सकते हैं और मशीन से भी करते हैं. We can use both of the process for making sweaters or for doing the knitting process. So for making fabrics through the yarn, what kind of process we are using? We are using weaving process and the knitting process. In weaving, we just use two types of threads, one in horizontal position and the another one is vertical position. Then we make a fabric. For example, in sarees and pants and shirts, we are doing the weaving process, and in knitting process we just using one kind of thread and for making the fabric, है ना. So and we can do both of the process by the hand and the machines. Okay, so these process I have discussed with you. Then come weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. These fabrics are used for a variety of clothing. Yes, weaving और knitting का use करके हम different kinds के fabrics को बना सकते हैं और बहुत सी varieties we just can make through this weaving and knitting process. At last, in your topic history of clothing material, here the history of clothing material हम देखते हैं कि एक्चुअली हमारी कपड़े के मामले में या मटेरियल जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, तो हिस्ट्री हमारी क्या रही है. क्लॉथिंग कैसे लोग पहनते थे, क्या करते थे, कैसे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए क्लॉथ का यूज़ करते थे या नहीं करते थे, वॉट एवर वी जस्ट डिस्कस हियर. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लॉथ? आपने कभी सोचा है कि प्राचीन समय में लोग अपने कपड़ों के लिए कैसा मटेरियल यूज़ करते थे? It appears that in those times people used the bark and the big leaves of trees, animals skin and furs to cover. Actually उस टाइम पर लोग क्या करते थे? वृक्षों की पत्तियाँ, छाल, जानवरों की खाल, उनके फरों का यूज़ करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्री, पर कुछ समय बाद लोगों ने धीरे धीरे क्या है, कृषि की तरफ, खेती की तरफ अपना दिमाग लगाना स्टार्ट किया. दे लर्न टू वीव ट्विग्स ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट. उन्होंने क्या किया, घास के द्वारा मैट्स और बास्केट बनाना स्टार्ट किया. वाइन्स एनिमल्स फ्लीस, उन्होंने वाइन्स मीन्स लताओं से एनिमल फ्लीश मीन्स उनके हेयर से, उनकी वूल से को भी, यानी लताओं को और जानवरों के हेयर को ट्विस्ट करके उससे क्या होती है, एक मजबूती आ जाती है ना. अगर हम वाइन्स मीन्स लताओं की मोटी मोटी बेल्स का यूज़ कर, बेल जो होती हैं, लताएं होती हैं, उनको यूज़ करेंगे और एनिमल फ्लीज है उसके हेयर को भी उसके साथ यूज़ करेंगे, तो उसमें क्या एक स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है. तो वाइन्स एंड एनिमल फ्लीज ऑफ हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड, लंबे लंबे धागे बनाने के लिए उनका यूज़ किया. दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स, और इनको उन्होंने कपड़ों के रूप में पहनना स्टार्ट किया. द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन. उस समय क्या करते थे लोग, कुछ कपड़े भी पहनते थे जो कॉटन के भी बने होते थे. दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा. और वो कॉटन उनको किस क्षेत्र से मिलती थी? एक्चुअली वो जो उनको कॉटन मिलती थी जिसके वो फैब्रिक्स बना करके अपने तन को ढकते थे, वो उनको गंगा के किनारे से मिलती थी. फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल. फ्लैक्स भी एक प्लांट होता है, एक नेचुरल प्लांट होता है जिससे कि हमें नेचुरल फाइबर मिलता है.
In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile. प्राचीन समय में क्या होता था, इजिप्ट में जो कॉटन और जो फ्लैक्स के पौधे थे उनकी जो खेती की जाती थी, नाइल नदी के किनारे की जाती थी, और उसके द्वारा फैब्रिक्स बनाने में उस कॉटन का और फ्लैक्स का यूज़ किया जाता था. इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन. उस समय पर सिलाई लोग नहीं जानते थे. पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द. वो जनरली जो भी फैब्रिक्स बनाते थे उसको बस अपनी बॉडी के चारों तरफ लपेट लेते थे. मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज. और अलग अलग तरीके से कपड़ों को अपनी बॉडी पे लपेटते थे. विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल, जैसे ही उन्होंने थोड़ा बहुत सिलाई का काम सुई से सिलना सीखा, पीपल स्टार्टिंग स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ. तो लोगों ने कपड़े सिलना स्टार्ट कर दिया. स्टिच्ड क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस. फिर उसके बाद जो कपड़े सिलने का काम हुआ तो फिर उसने बहुत सारी वैरायटीज़ का रूप ले लिया. पैंट बन गया, शर्ट बन गया, बैग बन गए, सब कुछ. मतलब जब लोगों ने सिलाई सीखी तो फिर बहुत सारी वेरिएशंस उन्होंने निकालना स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना. और वो एक आविष्कार के रूप में आज हमारे देश में बहुत एक लार्ज स्केल पर, बड़े बड़े पैमाने पर उनका मतलब वो बढ़ गए. वो हम डिफरेंट उनको शेप और साइज़ में स्टिचिंग का काम करने लगे. बैग, पर्स, पैंट, शर्ट, एवरीथिंग, व्हाटएवर. बट इज़ इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे, पर ये कितनी आश्चर्य की बात है कि आज भी साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन मीन्स पगड़ी, ये आज भी अनस्टिच फॉर्म में ही ऐसे ही यूज़ किए जाते हैं ना. कितनी आश्चर्य की बात है कि आज भी साड़ी हुआ, धोती हुआ, लुंगी हुई, टर्बन हुए, इनको आज भी हम अनस्टिच फॉर्म में ही एक सिंगल पीस के फॉर्म में यूज़ करते हैं. जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी इन फूड ईटन ऑल ओवर कंट्री. जैसे कि हमारे देश में बहुत अमाउंट में डिफरेंट कंट्रीज़ में एक डिफरेंट वैराइटीज़ के फूड खाए जाते हैं. लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लॉथिंग. इसी तरह से देश के विभिन्न भागों में डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट फैब्रिक्स का यूज़ किया जाता है फॉर देयर क्लोथिंग. ओके, सो इन दिस चैप्टर टुडे I have completed this chapter and I have already discussed everything with you. So you just read this chapter carefully. If you have any doubt, you can ask me. Please like the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day, kids.